Hi people, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati2, and I'm really happy to come back with this super video because we are coming back after a long time, and this is going to be a great opportunity because यहाँ पे आप देख सकते हो we have one of our special guests जिनके साथ हम ये वीडियो करने वाले हैं. So I don't wanted to introduce him. Let him introduce himself. So let's start. Thank you, Krati. Thanks for giving me this opportunity. I am Rahul Vaswani, product head Supergrads. Have been mentoring kids since long, and today I thought क्योंकि CUET का इतना ज़्यादा chaos है हर जगह, Exactly. and people wish to know about it, और इस एग्जाम से basically students की graduation super graduation में convert हो सकती है. By super graduation I mean they can actually get inside the best college and within the course of their choice. So इसकी वजह से I'm over here, and definitely you can shoot up with the questions which students have asked you. Sure, sir. I am actually happy to introduce you onto my channel and to do this video because as you said it कि CUET को लेके काफी ज़्यादा क्योज है. It is something जो काफी immediate हुआ. Like बात बहुत पहले से हो रही थी, but students are not well informed regarding this thing that how it's going to work. So I have prepared a list of questions for you. So I'm going to trouble you into this video by asking lots of questions to you. Sure. And I hope that our audience is also ready. First of all, मैं अपने आप को एक as a यहाँ पे student ही consider करूँगी. Let's suppose that I don't know anything, so I have prepared questions according to that perspective. Sure. Let's start with the very first question. Sir, ये CUET है क्या? Like I seriously don't know anything about it. All right. So CUCET जो अब CUET हो चुका है, CUCET is stood for Common Universities Entrance Test. Oh, sorry, Central Universities Common Entrance Test. और अब जो CUET हो गया है, that is Common University Entrance Test. So ये बहुत टाइम से चल रहा था. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, तब से ये एक प्रपोजल गया कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, नॉट ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दे शुड बी कंडक्ट अ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर दी स्टूडेंट्स, और उसके बेसिस पे ही एडमिशन यूनिवर्सिटीज को लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स थे. अब धीरे धीरे कर सबसे पहले इंडिया में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपने ऊपर दारोमदार लिया, एंड दे स्टार्टेड विद CUSET, जिसका नाम पहले से आ रहा था कि CUSET होगा. ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. बट यूजीसी चेयरमैन ने इसका सडनली नेम चेंज कर CUET कर दिया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन और भी था कि इसमें यूजीसी फंडेड 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो पार्टिसिपेट करेंगी, पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये यूजीसी चेयरपर्सन ने क्लियरली कहा कि जितनी भी आने वाले टाइम में डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी इसका स्कोर कार्ड एक्सेप्ट कर सकती हैं. और इनफैक्ट इसका असर दिखा भी, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने अभी इसको अडॉप्ट किया है, या कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज ने इसको अडॉप्ट किया है डाउन साउथ में. तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में जितनी यूनिवर्सिटीज है वो CUET का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करने वाली है डेफिनेटली. In fact, it is very good. As you said it कि ये काफी टाइम से चल रहा था. I remember when I took my admission for my university, at that time it was going on. They are going to opt for it, and back then 2019, and now it is 2022, and they are doing it. Yeah. But I have one question into my mind. Let's talk about the CUET and CUCET, which we often say, क्योंकि board exams फिलहाल चल रहे हैं. Okay, and students also need to prepare for CUCET, and I think now they are not going to have this option कि अभी merit base पे हो जाएगा. So how this board examination and CUCET preparation going to clash, and beside this CUCET की वजह से cut off वाला competition कैसे impact होने वाला है? Okay, so दो क्वेश्चंस आपने पूछे, बहुत इम्पैक्टफुल क्वेश्चंस पूछे हैं. सबसे पहले कि अगर सीधे सब शब्दों में बात की जाए स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या सर बोर्ड के लिए नहीं पढ़े, ये एक चीज आती है. तो लेकिन ऐसा नहीं है. आई वुड सजेस्ट the preparations for board examinations as well as for common university entrance test should go hand in hand. If they are going hand in hand, तब आप सक्सेसफुल हो पाओगे. उसके पीछे बहुत सिंपल सी चीज है. डोमेन के लिए आप ऑटोमेटिकली पढ़ रहे हैं. आज जो आप बोर्ड का पढ़ रहे हैं वही डोमेन में पूछा जाएगा आपसे, जो सेक्शन 2 में आएगा. एंड इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट के लिए आपको अलग से पढ़ना है. दैट्स समथिंग which you should be doing hand in hand. दूसरी चीज, एक अननेसेसरी प्रेशर न लें. लेकिन ये बात मैं अभी जरूर कहूंगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैनल, बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले साल तक वर गेटिंग इनटू अननेसेसरी कंपटीशन दैट आई नीड टू गेट इनसाइड
this particular college, इस university में I need to get in with the percentages of 95 plus, और वो सोते नहीं थे, बिल्कुल जागते रहते Yes. थे, वो अब टेंशन खत्म कर दें. अगर आपके 80% आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, वेल एंड गुड. लेकिन अगर ऐसा आप पढ़ो ही नहीं और फेल हो जाओ, दैट्स समथिंग विच इज वेरी बैड. सो डेफिनेटली बोर्ड्स की भी पढ़ाई करें, सीयूईटी भी करें. आई थिंक इफ यू कैन रिपीट योर सेकंड क्वेश्चन, आई एम जस्ट बीइंग बिट फॉरगेटफुल. उसी में सेकंड. My question was that how board examination and CUCET are going hand in hand, and second was that how CUCET is going to Okay. impact the cutoff wala thing, which used All to right. be in many universities. I think a great question over here. Now understand this. What used to happen, Krati, last year, बोर्ड एग्जाम्स के बाद स्टूडेंट्स को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता था. सबसे ज्यादा वहां पे पॉपुलर कुछ यूनिवर्सिटीज थी, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां पर कट ऑफ्स यूज्ड टू गो 99, 98, 97%. एंड टू योर सरप्राइज, आई लेट मी टेल यू, few of the colleges, in fact एक कॉलेज 2019 में, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन चालू करी, आपको शायद पता भी हो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कॉलेज के इकोनॉमिक्स सेक्शन के लिए फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट का कट ऑफ किया था 100%. सो जिस बच्चे Yes. के 99.9% मार्क्स भी आए होंगे ना, उसको एडमिशन नहीं मिला था. एंड उसके बाद एक तमाशा सा हो गया हर जगह कि यार ये क्या है. अगर मेरा 97, 98% है, डिस्पाइट दैट आई एम नॉट गेटिंग द कॉलेज ऑफ माई चॉइस, देन व्हाट इज द वैल्यू इनटू इट. देन प्रॉब्लम यहां पे एक और थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मैं अगर एक बोर्ड से हूं, आप किसी और बोर्ड से हो, यहां पर बोर्ड की मार्किंग का स्कीम अलग है, वहां पर अलग है. फॉर एग्जाम्पल, यू नो, आई एम फ्रॉम केरला बोर्ड. केरला बोर्ड का बहुत बार बार नाम उछाला है इस पर्टिकुलर केस में, इसलिए मैं केरला बोर्ड का नाम. I know it. They are being targeted for this like many times. All right. So what क्यों टारगेट किए जाते हैं, मैं अभी ऑडियंस को बता दूं. क्योंकि यू नो वहां पर टेंडेंसी ऑफ गिविंग मार्क्स इज टू मच. सो बहुत इजी है वहां पे 100 में से 100 मार्क्स लेके आना, है ना. लेकिन जैसे कोई और बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ, सीबीएसई, वो मिनिमल मार्किंग करेगा, हो सकता है वो 98% आपको दे दे, ठीक है. लेकिन कुछ और बोर्ड्स हैं, काफी सारे बोर्ड्स हैं, जहां पर मार्किंग स्कीम ऐसा है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको जाके मिलेंगे 89%, 90%, 91%. Now, I know it. I think far better we do not mention those boards, but it is very true. yeah. It is very true. So प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि हर बोर्ड में बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन कहीं पे भी परसेंटाइल सिस्टम नहीं है, परसेंटेज सिस्टम है. तो जो बच्चा अगर किसी ऐसे बोर्ड से जहां मार्किंग स्कीम बहुत फ्लेक्सिबल नहीं है, देन सर्टनली उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है और वो अच्छे कॉलेज में जा ही नहीं सकता. कंप्लीटली स्टॉप हो गई उसके लिए बात. सो हाउ, मतलब पूरे इंडिया को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना बहुत जरूरी था. इसकी वजह से कृति, यू नो, जो कट ऑफ्स वाली आप बात कर रहे हो, अब एवरीबॉडी इज अंडर सिंगल अम्ब्रेला एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रॉब्लम फॉर एनीवन. In fact, it is very good because I completely understand. Many times, कई बार बच्चे उस क्लास में होकर कुछ specific reason की वजह से अच्छा perform नहीं कर पाते. In fact, this is something that happened with me as well. On my first exam of English, I was unable. I just missed 20 marks questions. 20 marks. It was huge, and it was my first exam. Right. So I was like, कि now अभी 4% तो गया. तो फिर तो आधा तो कट ऑफ में ऑलरेडी बाहर ही हो गई थी. एंड यस, देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन. सो व्हाट डू यू थिंक सर दैट इज देयर गोइंग टू बी sorry, I would like to repeat my question. My question is that next question, that CUCET की वजह से मेजर इम्पैक्ट क्या आने वाला है? मेजर इम्पैक्ट ये आने, देखो बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, एक इम्पैक्ट नहीं है कृति. मैं एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट, एक हमने बोर्ड एग्जाम वाली बात तो करी, डेफिनेटली दैट्स गोइंग टू बी बिग इम्पैक्ट. सेकंड थिंग, यू नो, एज यू वर मेंशनिंग अभी थोड़ी देर पहले ही, यू वर गिविंग इंग्लिश एग्जामिनेशन. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, इफ आई एम गिविंग a subjective examination, the tendency of a checker would always be different. You know, एक checker हो सकता है कि best but marks में 10 में से 10 दे, दूसरे क्वेश्चन, दूसरे की टेंडेंसी होगी 10 में से 9 दे, 8 दे. सो यू नो, ये सब्जेक्टिव बायस भी एक आ रहा था कि फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब जो चेकिंग होगी वो कंप्यूटर कर रहा है, सो प्रॉब्लम खत्म हो गई इस पर्टिकुलर एग्जाम से. दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसके बाद ये भी आने वाला है. देखो, एक तो बोर्ड बायस था, वो खत्म हो गया, सब्जेक्टिव मार्किंग बायस खत्म हो गया. तीसरा प्रेशर, जो हमने बात करी स्टूडेंट्स के ऊपर से, 97 स्कोर करना ही है, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी, वो खत्म हो गया. नाउ एवरीबॉडी इज अंडर वन अम्ब्रेला. लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज,
अगर सीयूईटी हो जाता है, आपने ये जाना होगा कि बीकॉम डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन अगर बाकी के इंडिया के किसी लोकल कॉलेज से आज के टाइम पे अगर आप कर रहे हो, तो बीकॉम कोई डिग्री होती है क्या? ऐसी बात होती है आज के टाइम पर। बट इम्पैक्ट था जो कॉमर्स का, बीकॉम का, वो खत्म कर दिया था लोकल कॉलेजेस ने, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन दे रहे थे। कोई कंपटीशन थी नहीं। अब इसी तरीके से अपन जेई साइड चले जाते हैं, वहां पर क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है तो माहौल बना हुआ है सालों से। नीट में माहौल बना हुआ है। अब वो माहौल आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज के बीच में आपस में कंपटीशन के थ्रू आएगा। हर यूनिवर्सिटी एकेडमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, डिलीवरेबल वाइज, प्लेसमेंट वाइज अच्छा करने की कोशिश करेगी, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक काउंसलिंग प्रोसेस होगी एंड डेफिनेटली विद इन यूनिवर्सिटीज कंपटीशन क्रिएट होने वाला है। And once that happens, so you would find that after 5 odd years, all these non-professional courses also, क्योंकि majority of these central universities non-professional courses को ही cater कर रहे हैं, जिसमें Yes. commerce, science, arts, vocational studies, languages है। तो 100% इनकी वैल्यू और स्तर बहुत बढ़ेगा। पूरी पूरी की पूरी इंडिया की शिक्षा का स्तर सुधरेगा इस पर्टिकुलर स्टेप से। No doubt, because I remember अगर हम किसी से normally let's talk about, because I'm from Delhi University and if we talk about DU ना, तो normally जो students होते हैं, they are looking for, they wanted to get admission Delhi University, they just know top 5 colleges. Right. However, there are 90 colleges associated with DU and I must say that कि अगर वो DU से associated है, definitely हर एक college का अपना एक level है। Right. But people just know about these 5 colleges और जिनका कट ऑफ जो है वो 98 से लेके 100% के बीच में जाता है। So that's the problem. Since we are talking about the university, here's one I have question, क्योंकि अभी CUCET आ गया है और CUET आ गया है, इसकी वजह से अब सारे यूनिवर्सिटीज आर लाइक, हम कह सकते हैं वो सारी सभी एक ही रेस में है, बिकॉज सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम हो गया है। सो जब CUCET की अगर कोई तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, तो which university they should target for it? All right. So most importantly, you can target few of the finest central universities and the state and private universities which are actually coming to the picture. So if you wish to get inside somewhere, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। पूरे इंडिया में सबसे क्यूएस रैंकिंग्स की अगर बात की जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में हमेशा अपना नाम कमाती हुई आई है। सबसे अच्छी बात जैसे आप भी कह रहे थे, सो 64 यूजी कॉलेजेस आज के टाइम पर आपको सीयूईटी के थ्रू एडमिशंस देंगे। 77 अफिलिएटेड कॉलेजेस है। इनफैक्ट सबसे बड़ा दमदार बात इसके पीछे यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का यहाँ पे ये है कि 70,000 सीट्स, 69,500 प्लस सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि हर किसी को मौका मिल सकता है, आप किसी भी स्टेट से कहीं से भी हैं। दूसरी बात, जामिया, फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी। आई थिंक जामिया अपना एंट्रेंस पहले से कंडक्ट करवाता आ रहा था, अब उसको बस रिप्लेस कर रहा है सीयूईटी। एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जहां पे जितने कोर्सेज ऑफर कर रही है जामिया मिलिया इस्लामिया, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे एलुमनाई वहां के बहुत फेमस रहे हैं। इसके बाद अगर फॉरेन लैंग्वेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी हो नहीं सकती, क्योंकि NIRF रैंकिंग्स में हमेशा टॉप 3 में रही है खूब सारे सालों से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अनडाउटेडली एक जाना माना नाम है, सालों से बहुत सारे, इनफैक्ट उसके कैंपसेस भी 4 जगह पर हो गए, अलीगढ़ के अलावा भी 3 जगह पे हो गए। पांचवा, पूरे वर्ल्ड में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां पर जाकर सबसे ज्यादा डिफरेंट कंट्रीज से लोग पढ़ने आते हैं। तो आंसर मिला मुझे BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, फैंटास्टिक यूनिवर्सिटी। एंड अभी आर्ट्स एंड सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा बोनेंजा हुआ जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस ने ये अनाउंस किया कि वी वुड बी टेकिंग अ CUET फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर। सो दिस 6 यूनिवर्सिटीज को आप आंखें बंद करके टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश हुई, या फिर प्रयागराज यूनिवर्सिटी हुई। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस ओपन, बट यस, दीस 6 universities are must to go for. That's really great. I think हमारी ऑडियंस को अब plenty of options already मिल चुके हैं, because see I believe कि लोग आपको जो दिखाना चाहते हैं majorly लोग उसी की तरफ जाते हैं. So people just wanted to show, and I think there used to be a merit game in a Delhi University, and this is why it always used to be in highlighted one. But अभी सारे एक ही कैटेगरी में हैं, क्योंकि सारे एक ही रेस में हैं. So all the options provided
by here are going to be very good thing अगर आप इनमें से किसी एक को टारगेट करने वाले हैं. But the fundamental question comes here when we talk about the CUET or CUCET ना, expected pattern क्या होगा? Because I think ये सबसे बड़ा सवाल है. एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या होगा मैं ये बता देता हूँ. अब तो बिल्कुल, अब तो एवरीथिंग इज आउट. सो नाउ Okay, द just पैटर्न reveal it. इज, या सो द नाउ द पैटर्न फॉर यू गाइस इज 3 सेक्शंस है. थोड़ी चीजें कॉम्प्लिकेट है, बहुत आसान शब्दों में हम समझते हैं. 3 सेक्शंस में पेपर आने वाला है. सेक्शन 1 का नाम रख दिया लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 का नाम रख दिया डोमेन, सेक्शन 3 का नाम रख दिया जनरल टेस्ट. अच्छा, कोई भी सेक्शन कंपलसरी नहीं है. आपको ऑप्शन वाइज अपने सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 को चूज करना है. क्लियर? अब स्टूडेंट्स कैसे चूज करेंगे भैया? जिस कोर्स को वो टारगेट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर बीकॉम करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बता दिया आपको कि आपको अगर बीकॉम टारगेट करना है तो आपको ये सब्जेक्ट्स लेने हैं, तो बस वो आप सब्जेक्ट्स लोगे. ठीक है. अब सेक्शन 1 में लैंग्वेजेस में 13 ऑप्शंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें मेजर मीडियम्स जितनी हम में पढ़ाई होती है इंडिया में, सारे के सारे लैंग्वेजेस आप में से कोई एक चूज कर सकते हो. चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो गुजराती That's हो, really great. हाँ जो मलयालम हो, अगर केरला से हो तो, अगर आप तमिलनाडु से हो तो तमिल हो. तो 13 मेजर लैंग्वेजेस सेक्शन 1 में 1 के 1A पार्ट में ऐड करी है यूनिवर्सिटी, सॉरी यूजीसी ने इस बार. सेक्शन 1 को 2 पार्ट्स में राइट किया, 1A एंड 1B. अब 1B क्या है? जो लैंग्वेजेस मीडियम 1A में नहीं आ पाई, उन लैंग्वेजेस को 1B में टारगेट किया, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेजेस के लिए बहुत बार स्टडी करते हैं, या कुछ ऐसी लैंग्वेजेस जो कि आप यूजुअली 1A में इंक्लूड नहीं कर पाए. जैसे सिंधी एक लैंग्वेज है जो कि बोली जाती तो है, लेकिन मीडियम में नहीं चलती कहीं पर, तो 1B में डाल दिया उसको. तो 20 लैंग्वेजेस उन्होंने 1B में डाली. तो सेक्शन 1 में ही 33 एग्जाम्स होने हैं, जिसमें से आप अपने लिए चूज करोगे. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी चूज कर सकते हैं. ठीक है ना? जो Yes. मीडियम है, सिंपल बात. दूसरा, सेकंड सेक्शन इज डोमेन. जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, अगर आप आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है वो साइकोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिलोसफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो. साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी हो. अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो बिजनेस स्टडीज हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, या फिर बिजनेस सॉरी अकाउंटेंसी हो. ये सब्जेक्ट्स हुए. तो ऐसे करके तमाम करके 27 सब्जेक्ट्स ऐड किए गए हैं डोमेन में. वही सब्जेक्ट आप चूज करेंगे जो आज आप 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, बस उसी का पेपर दे सकते हैं. ठीक है. सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट. अब जनरल टेस्ट क्या है? एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट है, जिसमें 5 और सेक्शंस कर दिए हैं बस, लेकिन मैं आपको बिल्कुल इजीली समझा देता हूं. इसमें एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस. इसके साथ साथ आपने जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 8th क्लास तक पढ़ा हुआ है, मतलब जो कंसेप्ट आपने 8th क्लास तक पढ़े हुए थे, वो चीजें आएंगी. ठीक है. अब यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि जिस कोर्स के लिए बच्चा आना चाहता है तो कौन कौन से इसमें से पेपर्स लिखेगा और क्या होगा. पेपर बहुत आसान बनाया गया है. सेक्शन 1 में आपको 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन 2 में, सेक्शन 1A या 1B अलग अलग, दोनों में 60 क्वेश्चंस, 50 आपको अटेम्प्ट करने. डोमेन में भी 60 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें आपको 50 अटेम्प्ट करने. सेक्शन 3 जनरल टेस्ट में से 75 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से 60 यू आर सपोज टू अटेम्प्ट. ठीक है. सेक्शन 1 और 2 को 45 मिनट्स का टाइम दिया गया है. सेक्शन सी को 60 मिनट्स का टाइम दिया गया. क्लैरिटी बिल्कुल यहां पर ये रहेगी. So my question is that you explained about the exam pattern and all, but मान लीजिए कि कोई specific course continue करना चाहता है. Let's talk about I am the person I wanted to continue for BA Honors Political Science. So is this syllabus going to be different for Delhi University or any other university if I'm targeting? How there's going to be differentiation? So as the name suggests, common university entrance test. So syllabi for every subject is going to be intact and same. मतलब जितने भी आप सब्जेक्ट चूज करने वाले हैं वो सेम है. बट कृति यहाँ पर एक छोटा सा कैच है. हर यूनिवर्सिटी अपने पर्टिकुलर कोर्स के लिए कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूनिवर्सिटी ए अपने बीकॉम कोर्सेज के लिए जनरल टेस्ट और लैंग्वेज ही रखना चाहती है तो रख सकती है. हो सकता है कैटेगरी बी रखना चाहे लैंग्वेजेस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सब्जेक्ट विच यू आर स्टडिंग इन 12th राइट नाउ. स्टूडेंट इन दोनों यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहता है और साथ साथ 5 और यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना चाहता है,
तो वो जो सातों यूनिवर्सिटी की टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है जो बीकॉम के लिए है और वो जाके पढ़ाई करना चाहता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स उसको चूज करने पड़ेंगे. सो काफी सारी यूनिवर्सिटीज के कॉमन हो सकते हैं, इट में डिफर एज वेल. तो उसके हिसाब से वो अपना एक टिक करता जाएगा सब्जेक्ट को. फॉर एग्जाम्पल अगर उसको मैथमेटिक्स टिक करनी है तो मैथमेटिक्स, और दो दो सब्जेक्ट्स जो पढ़ना चाहता है वो भी करेगा. लैंग्वेजेस जितनी करना चाहता है वो भी कर सकता है. जनरल टेस्ट करना चाहता है वो भी कर सकता है. सो दैट्स द थिंग व्हिच स्टूडेंट हैज टू फॉलो. I think this is going to be work in a way कि that person need to go through the official website of that particular university, because Right. हर university अपना guideline जो है वो release करते हैं, expected बताती है कि what is going to be the basic syllabus for it. Right. Okay, I got one of the interesting question onto my YT, and it was like I did Q&A onto my Instagram as well, and one of the student was asking me that तो फिर board exam के लिए नहीं पढ़े. सो इसका आंसर आई थिंक हम पहले भी बात कर चुके हैं. बोर्ड एग्जाम्स के लिए यार, अब देखो एक सिंपल सी बात है, नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, इसका रिपोकेशन क्या हो सकता है अपन समझ लेते हैं. यूनिवर्सिटीज के ऊपर एलिजिबिलिटी का दारोमदार दिया हुआ है क्लियरली हाँ. कि आप अगर एलिजिबिलिटी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं. सो एक यूनिवर्सिटी अगर अपने कट ऑफ के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए, या कोई कॉलेज एलिजिबिलिटी के लिए 65 to 75% की एलिजिबिलिटी मांग ले आपसे, आप वहां पे दाखिला ही नहीं ले सकते. यू कैन नॉट टेक एडमिशन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. सेकेंडली, 12th बोर्ड अभी आपको नहीं दिख रहा उतना इंपॉर्टेंट, बट 12th बोर्ड आने वाले टाइम में, इन द कमिंग टाइम, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन स्टडी करेंगे या जब आप जॉब में जाएंगे, तब 100% वो 12th बोर्ड के जितने परसेंटेजेस है दैट आर गोइंग टू बी क्वाइट यूजफुल फॉर देम, and they may reject you that point of time. So please don't take them so Lightly. lightly. But yes, you are It's going to be. liberated from getting more than 95% marks. जो प्रेशर आप पिछले साल तक लेते थे कि भाई मेरे इतने मार्क्स आ जाए तो मुझे कॉलेज मिल जाएगा, यू आर लिबरेटेड फ्रॉम दैट थिंग कंप्लीटली नाउ. I got it. Like it's not just कि आप उसको completely ignore कर दें. You have to prepare for it as well. And I think that कि अगर कोई भी बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो CU/CET के लिए काफी हद तक तैयारी कर रहा है. दोनों हो रही है साथ में. Right. It is different कि आप उसको उसके लिए एग्जाम पैटर्न ऑल डिफरेंट होने वाला है. But the basic thing you are doing currently in your board exam, which are going to be considered into your entrance exam as well. इनफैक्ट Now, दोनों I की have स्टडी one. साथ में करो. मतलब हमेशा हम यही कह रहे हैं कि दोनों को साथ में लेके चलो, एंड देन यू आर गोइंग टू गेट हियर. It is possible. So there is a thing, people are often attracted towards one thing, and I think जब 12th के बाद यूनिवर्सिटी की बात होती है, why they are more inclined towards Delhi University, क्या स्पेशल है साउथ में? दिल्ली यूनिवर्सिटी, हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे, बहुत रिनाउंड यूनिवर्सिटी है. क्योंकि यू वुड नॉट बिलीव कृति कि एनआईआरएफ रैंकिंग लेके आना किसी कॉलेज के लिए कितना टफ हो सकता है. अगर किसी को विश्वास ना हो तो जिस भी, जहां पे भी बैठकर आप ये पर्टिकुलर टॉक शो देख रहे हैं हम दोनों के बीच का, अपने बेस्ट कॉलेज की एनआईआरएफ रैंकिंग चेक कर लीजिए अपनी सिटी की. देन ट्रस्ट मी ऑन दिस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पास टॉप 20 एनआईआरएफ रैंकिंग्स में से 12 एनआईआरएफ रैंकिंग है आज के टाइम पर. No doubt, no doubt. एंड नॉट ओनली दैट, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर 10वें कॉलेज को भी किसी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज से कंपेयर करोगे, वो 10वां कॉलेज या 15वां कॉलेज, इनफैक्ट बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, मतलब आप समझ लो बॉम्बे यूनिवर्सिटी या चेन्नई यूनिवर्सिटी के अराउंड बात कर रहा हूं मैं, तो भी उससे वो बेटर है. क्योंकि वहां पे कल्चर था एकेडमिक्स का, वहां पे कल्चर था इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहां पे कल्चर था स्टडीज का, वहां पे कल्चर था प्लेसमेंट का, वहां पे कल्चर था फेस्ट का, कॉलेज फेस्ट का. तो वो चीज अभी दूसरे लोग सिर्फ रेप्लिकेट करते रह गए हैं और ये इंप्रूव करता रहा हर साल. दूसरी बात, No. इसके पास बहुत अच्छी क्यूएस रैंकिंग्स हैं, और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को 77 अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उसको मेंटेन करना इस लेवल पे कोई मामूली बात नहीं है. इट्स बिग थिंग. दैट्स व्हाई. It is no doubt, because I'm a part of this university, and I know that how much sincere and accountable they are when it comes to ranking and when it comes to maintaining the quality whatever they are catering to their people.
so they are very careful about it. Now the very next question I have is about चूंकि हम ये कर रहे हैं in behalf of super grades, so super grades कैसे CUET में help करने वाला है students को, और इसके अगर कोई भी बच्चा अगर ये देख रहा है and they wanted to know more about it and they wanted to enroll for the aptitude test provided by super grades, तो उनको basic formalities क्या करनी? Okay, so CUET related, we have all sort of batches now. Volley of batches. सबसे पहले we have different batches for all the sections. तो अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, लैंग्वेज रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं किसी की भी, तो आप वो ले सकते हैं. सेकेंड सेक्शन डोमेन स्पेसिफिक में कोई भी डोमेन आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं. थर्ड जनरल टेस्ट आप पढ़ना चाहते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एट वेरी वेरी अफोर्डेबल रेट्स, बहुत अफोर्डेबल रेट्स. We have volley of test series around CUET. In fact, in the coming time, we are coming up with a fantastic, because Supergrads is known for IPM teachings, integrated program in management. We are coming up with integrated program in management plus CUET batch. जिससे अच्छा बैच, तो इसका नाम रहेगा IPM plus CUET जोश 2x बैच, जो कि जोश फिल कर देगा आपके में 2023 स्टूडेंट्स आईपीएम के साथ साथ सीयूईटी के टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा से रहा है शहीद सुखदेव में जाना है या इंदौर में जाना है या फिर एसआरसीसी में जाना है या मिरांडा हाउस में जाना है, तो उस लेवल की स्टडी अभी भी हो सकती है. आईपीएम की आप प्रिपरेशन करेंगे तो लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट में आपकी कमांड आ जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी. साथ साथ हम आपको डोमेन की स्टडीज भी करवा रहे हैं. सो you can get inside any of the top-notch colleges of the country. Supergrads is providing you with that kind of feat, and we have finest faculty team, mentorship team जो आपको support दे रही है at the back end, finest study material made by Supergrads content team. We help you with topper sessions. So it's a 360-degree preparation which we are bringing you for you guys, and certainly Supergrads can be a really big help for you for helping you get inside the college and course of your choice. I have one very straight question, and this was another question I asked onto my Instagram, and one student just directly asked me कि ये जो आप free webinar कराने वाले हैं हमारे help के लिए, तो ये बता मुझे Supergrads मदद करेगा या नहीं? All right. This was the real answer asked. This was the real question asked by the student. So definitely, Krati, Supergrads is a one-stop destination for you guys if you really wish to prepare for CUET. In fact, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोगों ने CUET के बैचेस के थ्रू, IPM प्लस CUET के बैचेस के थ्रू हम लोग मदद करने वाले हैं. आप एक बार www.toprankers.com जाकर हमारे जितना फ्री भी कंटेंट है वो भी जरूर चेक करें. हम लोग बोलेंगे जस्ट टेस्ट अस बिफोर यू ट्राई अस, बिकॉज देन यू विल एक्चुअली नो. जब आप डेमो क्लासेस देखते हैं, जब आप फ्री टेस्ट देते हैं, देन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ समथिंग. तो एक बार टेस्ट करें, ट्राई करें. जितने फ्री भी मटेरियल्स हैं, जितने ब्लॉग्स में चीजें आपको मिल रही हैं, जितने फ्री टेस्ट मिल रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पुटिंग लॉट मेनी थिंग्स एवरी डे, वो भी आप बिल्कुल देखें. That is going to be a help. Apart from then you register. एक बार पूरा टेस्ट करने के बाद you can definitely register for our courses. I think this is the best part, because जब भी students, especially मैं कहूँ कि leave about all these people, those who are actually buying courses and all, 12th class का बच्चा मैं उसको छोटा ही मानती हूँ. The reason is this is the first time when they are entering into this world, and हमेशा एक inferior complex होता है कि I don't know if I'm going to pay to this and this person, if I'm going to try, तो ऐसा ना हो. And it is the best part that they are going to get the trial series. तो आप खुद से एक बार टेस्ट कर सकते हो that it is going to be good for you or not. Because अभी तक के discussion से I came to this conclusion that yes, as you said, it's going to be one stop destination, so you all can rely on to it. So these were all questions from my side. If there's anything especially you wanted to ask and wanted to deliver to my audience, please. All right. So, one thing I would like to tell you, understand your passion, something which is very, very relevant. Okay. And CUET is something which will help you get inside your passion. और पैशन में कैसे जाना है, जो कोर्स तुमको समझ में आ रहा है कि हाँ ये मेरे लिए बना हुआ है, उस कोर्स के बेस्ट कॉलेज को ट्राई करो. एंड यही एक फॉर्मूला है. आपका ग्रेजुएशन अगर सुपर ग्रेजुएशन हो जाता है, देन डेफिनेटली दैट कॉलेज विल पुश यू इनटू द बेटर करियर ऑप्शंस एंड करियर पाथवेज इन द फ्यूचर.
and that's the only thing which I can give you in return. तो आखिरी में अपने कोर्स के बेस्ट कॉलेज में जाने का बस प्रयास करो via CUET. That's going to be a great help for you guys for the future. This was really very good advice given by you, sir. In fact, there's another advice that I would like to give to my people. It's just that please do not go for those people who have the pre-notion about some university and all, because आप जब beginning कर रहे हो अपनी journey की, far better आपकी journey का destination क्या है, रास्ता कैसे होने वाला है, you better do your own research rather than asking this person or this person. Just go for the facts now. सब कुछ available है. There's nothing that you can't get onto the internet. So we discussed about the ranking, we discussed about the all kinds of maintenance in different colleges. Just go for those facts and choose the one that you wanted to go for. So that's it from my side. Thank you, Krati, for giving me this opportunity. I think it was pleasure talking to you and your audience, just talking to them via this particular stream. Thank you for giving I'm me. really glad to invite you here. In fact, I wanted to ask my audience that if there's anything that you wanted to ask, please do let us into comment section. Another thing is that we are going to, I am going to put some of the links into description box. So make sure you people first check it out. I want you people कि आप खुद की research करो. Even after doing this video ना, you just go for it and try it and just check out all the trial series. In fact, you should go for it. I know that board exams are currently going on, but इतना time तो सबके पास रहता है क्योंकि board exams के time पे as far as I know ज्यादा मन एग्जाम देने में नहीं लगता, ज्यादा मन लगता है कि नेक्स्ट मेरा कॉलेज क्या होने वाला है एंड व्हाट आई एम गोना डू. So there are plenty of links available in the description box. Along with this, I'll be pinning one of the link into my comment section which you can go through. Thank you so much people for watching this. Bye bye, and let's meet into our next video.